کہ دہشت گرد تنظیمیں جو جہاد کے نام پہ بنی تھیں اور پھر بعد میں ٹیررزم کی طرف مائل ہوئیں، پاکستان میں ایک بیک گراؤنڈ اس حوالے سے رہا ہے۔ اب بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو پاکستان کی اسٹیٹ کو خود ایڈریس کرنا چاہیے۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، 3 دن کے لیے کینیڈا میں کیلگری شہر میں G7 کے ملکوں کی ایک سربراہ کانفرنس ہو رہی تھی، جس میں مودی کو بھی، بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کو بھی دعوت دی گئی تھی اور وہ وہاں گئے بھی تھے۔ وہاں پر امریکہ کا صدر ٹرمپ بھی آیا ہوا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ مودی وہاں پہنچا نہیں، اس سے پہلے ہی ٹرمپ وہاں سے واپس واشنگٹن چلا گیا۔ اب ظاہر ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، تو ایسے میں امریکہ جو ہے، جو کہ حمایتی ہے اسرائیل کا، تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور اس کے لیے شاید وہ G7 کی جو کانفرنس ہے اس کو بیچ میں چھوڑ کے واپس چلا گیا، جس کی وجہ سے ٹرمپ کی مودی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب جیسے ہی مودی صاحب کینیڈا پہنچے، سب لیڈران سے ملے، خاص طور پر مارک کرنی جو کینیڈا کے نئے وزیر اعظم ہے، اور ان سے بات چیت ہوئی۔ کینیڈا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات پچھلے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے وقت میں بہت نچلی سطح تک چل گئے تھے، ان کو واپس پٹڑی پہ لانا ہے، اس پہ بات چیت ہوئی۔ اور اسی طرح دوسرے رہنماؤں سے بھی مودی کی ملاقات ہوئی، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ صدر ٹرمپ سے تو ملاقات ہو نہیں سکی۔ تو بعد میں ٹرمپ نے واشنگٹن سے جناب مودی کو فون کیا اور فون پہ 35 منٹ تک دونوں کی بات چیت ہوئی۔ اب یہاں پر میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ پچھلے مہینے مئی میں 7 مئی سے لے کے 10 مئی تک 4 دن تک ایک چھوٹی جنگ ہوئی تھی پاکستان بھارت کے درمیان میں۔ اس کی وجہ تھا 22 اپریل کو پہلگام میں ہندوؤں کا قتل عام، مذہب پوچھ کر۔ خیر وہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ تو اس وقت جب 10 تاریخ کو پاکستان کی حالت بہت پتلی ہو گئی تھی، تو اس نے امریکہ سے درخواست کی تھی کہ یہ جنگ بند کرائیے، کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا سمجھتی ہے امریکہ جو ہے سول سپر پاور ہے دنیا کا، تو جو چاہے کرا سکتا ہے۔ اب یہ جو فون ہوا مودی اور ٹرمپ کے درمیان، تو اس میں مودی نے ٹرمپ کو کہا، جناب یہ جو جنگ بند ہوئی اس میں آپ کا کردار نہیں تھا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب ہم دونوں کے بیچ میں پڑھ کر میڈیشن کر کے صلح کرائیں گے، تو وہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ اب اس نے تو نہیں کہا تھا، لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں 1972 میں جو ہمارا سملا اکارڈ ہوا تھا بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان، اس میں یہ صاف صاف لکھا تھا کہ پاکستان بھارت کے بیچ میں جو بھی مسائل ہوں گے 2 طرفہ مذاکرات سے طے کیے جائیں گے، یعنی جو نیگوشیشن ہوں گے بائی لیٹرل ہوں گے، ملٹی لیٹرل نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے بھارت نے ہمیشہ اس بات پہ اعتراض کیا ہے کہ پاکستان ہر مرتبہ جو ہے کشمیر کا یا دوسرے مسائل UN میں لے کے جاتا ہے، اقوام متحدہ میں، جس کی بھارت مخالفت کرتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی طے کرنا ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو بھارت نے یا مودی نے ٹرمپ کو صاف صاف کہا کہ ہمیں جو بھی طے کرنا ہوگا ہم آپس میں یہ طے کر لیں گے۔ اب خیر
ये भारत की सरकार का कहना है। लेकिन जैसे ही ये पूरा हुआ उनका बातचीत फोन पे, उसके बाद उसने जो प्रेस से बात की ट्रंप ने, उसमें उसने फिर से ये बात दोहराई कि मैंने जंग बंद करवाई। अब देखिए जनाब, इसमें एक छोटी एक कैच है, वो ये है कि इतना तो आप सबको इल्म है ही कि 10 तारीख को पाकिस्तान की हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने साफ ज़रा जो हमला हुआ था, पहले तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जी जो हम त्यारे गिरे हैं ये जवाब दे दिया गया, लेकिन अवामी तौर पे प्रेशर आया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तौहीन हुई है और उसका जवाब देना होगा अफवाज पाकिस्तान को हर हालत में। ये अवाम का फैसला था कि हम इतना कुछ करते हैं, कम से कम सॉवरेनिटी वायलेट होने का जवाब जरूर जाए। पूरी कोशिश की गई, सहाफ़ी लगाए गए, वीलॉगर लगाए गए, ट्वीट्स करवाए गए, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर उन्हीं लोगों ने जो पहले ये दलीलें दे रहे थे कि बदला ले लिया गया, बहुत जबरदस्त हो गया, हथियारों की तादाद बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे, फिर उन्होंने ही ये दलीलें देना शुरू कर दी कि आपको पक्की खबर देते हैं कि हमला होगा, जवाब दिया जाएगा। जवाब तो फिर भी नहीं दिया गया। जवाब देने की कोशिशें की गई और जितने भी मिसाइल फायर किए गए भारत की तरफ, वो बॉर्डर के जो करीब के इलाकों में भारत के अंदर जो भारत का दफाई निज़ाम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, उसके जरिए वो न्यूट्रलाइज होते रहे। और उसके अंदर बहुत सारे ड्रोन्स भी शामिल हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए। मामला ये होता है, इस नुक्ते पर आकर सूरत हाल ये बनती है कि जब पाकिस्तान ये जवाब दे लेता है तो पाकिस्तान खैर दावा करता है कि हमने फलां फलां टारगेट्स को हिट किया। वो टारगेट्स को हिट करने की डिटेल तो नहीं मिल सकी। अगर जैसा कि हमने खुद कहा था कि कम से कम 2 दिन और अगर जारी रहती तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बिल्कुल ही नाकारा हो जाती, क्योंकि उनके 11 एयरफील्ड को तो भारत ने तबाह कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी अमेरिका से कि आप खुदा रहिए जंग बंद कराइए, और उसमें जो है मार्को रूबियो जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अमेरिका का, हम जिसे वजीर खारजा कहते हैं या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, उसने भारत के वजीर खारजा जनाब जयशंकर से बात की, एस जयशंकर से, और कहा कि आप ये जंग बंद कीजिए। अब उस वक्त जयशंकर ने उसे ये कहा कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, अगर पाकिस्तान ये जंग बंद करना चाहता है तो ये हमारा बायलेटरल एक मैकेनिज्म बना हुआ है। पाकिस्तान का जो आर्मी का डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, वो भारत के डीजीएमओ के साथ फोन पे बात कर सकता है और उसे दरख्वास्त कर सकता है कि हम जंग बंद करना चाहते हैं, फिर वो दोनों आपस में तय कर लेंगे। जिसके बाद, और ये हिस्ट्री है, इससे पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और फिर भारत का डीजीएमओ जो है उसने ये बात मान ली, जिसके बाद 10 तारीख के दोपहर से, यानी दोपहर के खाने के बाद से वो जंग बंद हो गई। अब यहाँ पर भारत कहता है कि इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है, तो टेक्निकली कह सकते हैं कि ट्रंप का तो इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने न तो मोदी से बात की और न उसने किसी से कुछ कहा जंग बंद करने के लिए। लेकिन अगर ये देखा जाए कि मार्को रूबियो ने जयशंकर से बात की, जयशंकर ने उसे एक रास्ता दिखाया कि इस तरह जंग बंद हो सकती है अगर पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ को फोन करे तो। जिसके बाद जो कुछ हुआ वो सब हिस्ट्री का हिस्सा है। तो इस लिहाज से ट्रंप भी गलत नहीं है मेरी नज़र में। अभी ये भारत को शायद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी स्टेटेड पोजीशन है कि हम जो चीज़ें तय करते हैं बायलैटरली करते हैं, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका ने ये जंगें बंद कराई है। 1999 में बिल क्लिंटन के कहने पर उसने कहा था वाजपेयी को कि ये जो कारगिल की जंग है उसमें पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी, उनको सेफ पैसेज चाहिए था। तो उस वक्त भारत ने ये बात मानी थी। और अब अगर इनडायरेक्टली
अमेरिका के कहने पर जंग बंद हुई है, तो मेरी नज़र में ये इसका इकरार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि भारत किसी भी लिहाज से कोई भी मसला जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान है उसको मल्टीलेटरल फोरम पे ले जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हमारी स्टेटेड पोजीशन है आफ्टर शिमला अकॉर्ड कि हम जो भी मसले होंगे बायलेटरली उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, यानी दो तरफा उनके बातचीत होगी, मुज़ाकरात होंगे। और अब भी अगर जो कुछ भी हुआ तो उसमें ट्रंप या अमेरिका का रोल नहीं होगा, हम दोनों आपस में बातचीत करके इसको तय करेंगे। लेकिन अभी ट्रंप का क्या है, उसकी भी मजबूरियां हैं, उसको इस वक्त पाकिस्तान में काम आन पड़ा है, वो मैं आपको कल बता चुका हूँ। जैसे रात को उसने, मतलब कल वहाँ पे तो दोपहर था, एक हमारे पास रात का 10:30 बजे था, तो उस वक्त उसने जोहराने पर या लंच पर जो है आसिम मुनीर को मदऊ किया था, बुलाया था ट्रंप ने व्हाइट हाउस में, और दोनों के दरमियान बातचीत हुई। और सीधी सीधी बात है, 2+2 मेक 4, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक दुनिया का सोल सुपर पावर, उसका सदर एक छोटे मुल्क के, जो कि $1 बिलियन के लिए IMF के आगे कटोरा लेके खड़ा हो जाता है, उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खाने पे बुलाता है, तो उसमें कोई बात होगी। वो जैसे ना बहुत पुरानी एक कहावत है कि बनिए का बेटा गिरता है तो कुछ देख के गिरता है, कोई मसला होता है बिना उसके कोई कुछ नहीं करता। तो ट्रंप को मालूम है कि पाकिस्तान में जो रियल पावर है इट स्टैंड्स विथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसको पाकिस्तान में अड्डे चाहिए ताकि वो अगर जंग आगे बढ़ जाए तो ईरान पर हमला करने के लिए उसको पाकिस्तान के अड्डे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी सरहद ईरान से मिलती है, तो वहाँ से हवाई जहाज उड़ जाके हमला कर सकते हैं। अब उन्होंने वो ये बात जो है ना, और फॉर्म में तो इसको डिक्लेयर करेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का अवाम जो है वो इससे नाराज़ हो जाएगा। वो मुस्लिम उम्मा करते रहते हैं। ये अलग बात है कि पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री यही रही है कि अमेरिका से पैसा लेने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने अपने शहरियों के ऊपर बमबारी तक की है, और आज भी कर रहे हैं। तालिबान का नाम लेकर वजीरिस्तान में पाकिस्तान की फौज बमबारी कर रही है। क्या पाकिस्तान के अवाम को इल्म नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? लेकिन वो लोग मानेंगे नहीं, मुंह से वो ऐसा कहेंगे हम मुसलमान भाई हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन पीठ पीछे वो अड्डे भी देंगे। इस वक्त भी रावलपिंडी का जो चकलाला एयरपोर्ट या नूर खान एयरपोर्ट है, वहाँ पर उसका आधा हिस्सा जो है ना वो अमेरिका के सुपुर्द किया हुआ है, अमेरिका की फौजें वहाँ पर हैं, वहाँ से वो उड़ के जाके कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या पाकिस्तान इससे इनकार कर सकता है? लेकिन वो सामने सामने कहेंगे कि नहीं, हम तो मुसलमान भाई हैं, ईरान के साथ खड़े हैं। और अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ ट्रंप की दावत क्यों कबूल करता है, क्यों उसके साथ जाके खाना खाता है, जबकि ट्रंप ने सीधा सीधा तेहरान को कह दिया है, उसने आयतुल्ला अली खामनाई को कह दिया है कि सरेंडर करो इससे पहले कि हम तुम्हें कत्ल कर दें। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।